So today we are going to start with volume questions, that is exercise 13.8. Let's begin from question number 1 onwards, and this is our last exercise. So after this exercise, the chapter will be completed. Okay, so let's start with question number 1. Find the volume of the sphere whose radius is 7 centimeter and 0.63 meters. So there are two questions, two sub questions of question number 1. In the first sub question, the radius is 7 centimeter and we are supposed to find volume of the sphere. It's straightforward application of formula. So what is given for the first question? Radius of the sphere, or for sphere, radius is equal to 7 centimeter. We are supposed to find its volume. So it's very easy. So volume is equal to 4/3 pi r cube. We know the formula. पाई का वैल्यू नहीं दिया है, तो अगर पाई का वैल्यू नहीं दिया है तो हम 22/7 लेते हैं, तो इसमें भी वैसे ही करना है. So it's 4/3 into 22/7 into 7 into 7 into 7. So 7 will get cancelled. So no number is divisible by 3 here. So we'll multiply everything and divide by 3 then. So now what happens here is 4 into 22 is 88. 88 into 7 into 7 is 49/3. 88 into 49 कर लेते हैं. So 88 into 49. So 9 8 is 72. 72 plus 7, 79, 0. 32, 2, 3 carry forward. 32 plus 3, 35. So that is 2, 11, 8 plus 5, 13. 4, 3, 1, 2. So it's 4, 3, 1, 2/3. So now let's divide 4, 3, 1, 2/3. So what you will get? 4, 3, 1, 2/3. So 3 1s are 3. 13, 3 4s are 12. 11, 3 3s are 9. 22, 3 7s are 21. 1.0. 3 3s are 9. 1 0. 3 3s are, तो आप देखोगे 3 3 3 3 3 रेकर होगा. सो बेसिकली इट्स 1437.33. तो जब रेकर हो रहा है तो वो यहाँ से रेकर हो रहा है. सो व्हाट वी कैन डू हियर इज वी कैन write this as mixed fraction form. So it will be 1437, क्योंकि recurring आया तो mixed fraction form में लिख लेते हैं. So it's 1367. Remainder is 1 and divisor is 3, so it's 1/3. I hope it is clear. So this many centimeter cube is the volume of the sphere for the first part of question number 1. That is our answer. Now let's move ahead with the second part of question number 1, in which the radius is 0.63 meters. So अभी जो second part है उसमें क्या करना है? Same thing करना है, खाली जो radius है वो 0.63 meters हो गया. So question number 2, sub question 2 मतलब, so for sphere radius कितना हो गया? 0.63 मीटर हो गया. ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा. अब 0.63 मीटर का वॉल्यूम हम जो फाइंड करेंगे वो 4/3 पाई आर क्यूब. So it's 4/3 into 22/7 into r is 0.63 into 0.63 into 0.63. So 0 ये 9 सा हो जाएगा, 0.9. I'm so sorry, it's 0.09 होगा, राइट. एंड ये डिवाइड होगा, सो ये 0.21 होगा. सब मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा. इट्स दैट सिंपल. यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ नाउ. So just multiply करो और मुझे बताओ आंसर क्या आया in the comments down below. Is that clear? So now let's move ahead with the question number 2. Before that, quickly note it down. So let's read the next question, question number 2. Find the amount of water displaced by a solid spherical ball of diameter 28 centimeter, and for the second one it's 0.21 meters. So again there are two sub questions in question number 2. इसमें क्या पूछा है? Find the amount of water displaced by a solid spherical ball of diameter 28 centimeter. अब देखो इसको समझते हैं पहले क्वेश्चन को. सो अगर मैं एक ग्लास में पानी लेता हूं, सो इफ आई टेक अ ग्लास कंटेनिंग वाटर इनसाइड इट, मैंने यहां तक पानी को भरा हुआ है. चलो मान लेते हैं कि ग्लास का जो हाइट है वो है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला है, ग्लास का जो हाइट है वो है 10 सेंटीमीटर का, मतलब बेस से टॉप तक का. उसमें पानी इतना भरा हुआ है, से 6 सेंटीमीटर तक भरा हुआ है.
जस्ट एन एग्जाम्पल, एक रैंडम नंबर लिया मैंने, 6 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ है। अब एक स्पेरिकल बॉल इसके अंदर हम डालने वाले हैं, या कोई भी आप एक ऑब्जेक्ट इसको डालो, कोई भी शेप का ऑब्जेक्ट। पानी में जब हम कुछ डालते हैं जिसका वॉल्यूम होता है, एयर को छोड़ के, जिसका वॉल्यूम होता है, जिसका डेंसिटी वाटर से ज्यादा होता है, अगर मैं स्पेरिकल बॉल डालता हूं फॉर एग्जाम्पल, सो पानी 6 सेंटीमीटर तक नहीं रहेगा, राइट? वो डिस्प्लेस होगा, राइट? वो राइज करेगा थोड़ा सा, बिकॉज उसके अंदर हमने कुछ डाला ऑब्जेक्ट जिसका कुछ डेंसिटी है। सो जिसके अंदर हमने एक स्पेरिकल बॉल डाला है, तो ऑब्वियसली जो पानी का जो लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर आएगा। चलो मान लो इतना सा ऊपर आ गया, चलो मान लो 1 सेंटीमीटर उसने राइज कर लिया। इज दैट क्लियर? ये होता ही है हमेशा, राइट? कितना ऊपर आएगा पानी का वॉल्यूम, सॉरी पानी का लेवल कितना ऊपर आएगा, से 1 सेंटीमीटर, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ है, डिस्प्लेस मतलब राइज हुआ है पहले यहां से यहां तक, तो जितना वॉल्यूम ऊपर आया है वो वॉल्यूम किससे इक्वल होगा पता है? इट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द वाटर। तो जो पानी का वॉल्यूम ऊपर आया है, इट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, बिकॉज जितना वॉल्यूम हमने उसमें डाला उतना ही पानी ऊपर राइज होगा। सो इन दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, इसका और इसका, देयर वॉल्यूम्स आर सेम। इज दैट क्लियर? वॉल्यूम्स आर इक्वल, ये दोनों का भी वॉल्यूम सेम होगा, वाटर डिस्प्लेस एंड इसका। ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये सब। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर। अब एक स्फेरिकल बॉल हमने डाला, इसमें 28 सेंटीमीटर का डायमीटर है। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, तो पानी में डालने के बाद कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ। अमाउंट ऑफ वाटर मींस वॉल्यूम ऑफ वाटर ऊपर आया। So volume of water displaced will be equal to volume of spherical ball. I hope that is clear. Okay. दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, सो उससे हमें आंसर आ जाएगा। सो व्हाट इज गिवन हियर, व्हाट इज गिवन फॉर स्फेरिकल बॉल, फॉर स्फेरिकल बॉल it's given that diameter is 28 centimeter. If diameter is 28 centimeter, radius is 14 centimeter. Volume of water displaced, volume of water displaced will be equal to volume of spherical ball. अभी ये जो सम से रिलेटेड फिगर नहीं है, ठीक है? वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल, वैसे तो फिगर सम से रिलेटेड ही है, बट इसमें जो मेजरमेंट्स है 1 सेंटीमीटर, ये सब सम से रिलेटेड नहीं है, ये मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिया था, ठीक है? सो इट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल, which is equal to 4/3 pi r cube. Pi का वैल्यू नहीं दिया है, so we will take 22/7. So it's 4/3 into 22/7 into radius is 14. So it's 14 into 14 into 14. Clear? So इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 7 2 से। आप सबको मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 3 कर दो। So it's 88 into 14 into 14 is 196 अपॉन 3। अब 88 इंटू 2 कर देते हैं, या फिर ये कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो इट्स 2 1 18 19 392। सो 196 का डबल 392 होता है अपॉन 3। सो 392 इंटू 88 कर दो। सो 392 इंटू 88 यहाँ पे कर देते हैं, इंटू 88 16 72 72 प्लस 1 73 24 प्लस 7 31, राइट? तो ये 6313313 होगा, 69443 63446, so 34496 डिवाइडेड बाय 3। सो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखते हैं कि रेकरिंग आ रहा है या नहीं, क्योंकि अगर रेकरिंग आएगा देन वी विल राइट इट इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो इट्स 34496 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 1s are 3, 4 3 1s are 3, 14 3 4s are 12, 29 3 9s are 27, 26 3 8s are 24, 22 आया बेसिकली। तो रेकरिंग आएगा बिकॉज 20 है, तो 3 अभी डेसिमल डालेंगे तो 3 6 18, फिर वापस से
20 3 6 जा 18 आएगा तो 6 6 6 ऐसे आता जाएगा. So let's not write it in decimal form, let's write it in mixed fraction form. So it's 11498 11498 2 by 3 centimeter or meter, centimeter cube, that is the volume of water which will be displaced. Is that clear? I hope the sum is clear. This is the first part. Quickly note it down. Okay, so this was the question. This was first part of the question. Now the second part of the question has diameter 0.21 मीटर, बाकी सब सेम है. तो अगर हम डायमीटर को 0.21 मीटर्स लेते हैं तो रेडियस कितना होगा? 0.21 अपॉन 2 मीटर्स होगा, जिसको हम ऐसे ही रखेंगे फॉर टाइम बीइंग. फिर रेडियस यहाँ पे 0. Formula will remain same. Volume of water displaced will be equal to volume of spherical ball, right? So it will be 0.21 upon 2 into 0.21 upon 2 into 0.21 upon 2. Correct. So अभी हम क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा. Just a moment. So what we can do here now, simplify it further to get the answer. So 7 और ये कैंसिल होगा, 0.03. 7 3 सा 21 होता है, राइट? सो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 सा 2 2 कैंसिल, 2 11. सो इट्स 3 0.01. अब डेसिमल निकालना की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो इट्स 11 इंटू 0.01 इंटू 21 इंटू 21 इज 441. और 4 डेसिमल है तो यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो टू गेट द आंसर इट्स 441 इंटू 11. सो इट्स 441 0 वापस 441. सो इट्स 1584. सो इट्स 4851. तो 4851 एंड कितने डेसिमल आएंगे? 1 2 3 4 एंड 5 6 बिकॉज ये 0.01 है, राइट? 1 2 3 4 बिकॉज इसको 4851 इंटू 0.01 करेंगे. यहाँ पे अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया सो 4 डेसिमल मतलब यहाँ पे एक डेसिमल ऐड कर देंगे बिकॉज इट हैज़ 1 2 3 4 डेसिमल्स. उसके बाद फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल रिमेन सेम 4851 बिकॉज इंटू 1 है, बट और 2 डेसिमल प्लेसेस ऐड करना पड़ेगा. सो बिकॉज 6 डेसिमल्स आ जाएंगे, राइट? और 2 आएंगे. सो इट्स 0.004851 मीटर क्यूब of water is displaced when the spherical ball is placed inside it. I hope the sum is clear. Quickly note it down. Okay, so let's read the next question. Question number 3. The diameter of the metallic ball is 4.2 centimeter. What is the mass of the ball if the density of the metal is 8.9 grams per centimeter cube? यहाँ पे हमें क्या बोला? एक मेटेलिक बॉल है. सो फॉर द मेटेलिक बॉल, sorry, what is given? Diameter is given as 4.2. डायमीटर दिया है 4.2 सेंटीमीटर. तो रेडियस कितना होगा? 2.1 सेंटीमीटर. डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो आ जाएगा रेडियस, राइट? व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब. सो डेंसिटी जो दिया है ना, डेंसिटी ऑफ मेटल, इस मेटेलिक बॉल का डेंसिटी दिया है 8.9 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब. सो डेंसिटी इज गिवन and we have to find its mass. हमें पता है कि formula for finding mass is equal to density into volume. किसी भी चीज का मास फाइंड करना है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, या फिर डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, राइट? तो अगर डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, सो मास इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा. तो डेंसिटी कितना दिया? 8.9. सो इट्स 8.9. अगर हम वॉल्यूम फाइंड कर ले बॉल का तो हमें मास मिल जाएगा. इट्स दैट सिंपल. सो लेट्स फाइंड वॉल्यूम ऑफ द बॉल. सो वॉल्यूम ऑफ द बॉल इज इक्वल टू, ये कौन सा बॉल है? स्फेरिकल बॉल है. बॉल मतलब स्फीयर होता है. तो 4/3 पाई आर क्यूब. इज द वैल्यू ऑफ पाई गिवन? नो. सो 22/7. तो इट्स 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है? 2.1 है. तो 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1. जब आर
क्यूब है ना तो 3 बार लिखना पड़ता है, ये याद रखना, वरना बहुत सारे चिल्ड्रन यहाँ पे मिस्टेक्स कर देते हैं कि 2.1 इंटू 2.1 2 बार लिखते हैं, बिकॉज आर क्यूब इतना प्रैक्टिस नहीं होता, बिकॉज इसके अलावा इन ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स, इन ऑल अदर सॉलिड्स, इन ऑल अदर फॉर्मूले इट्स ऑलवेज स्क्वायर नॉट क्यूब। तो यहाँ पे क्यूब का ध्यान देना कि 3 बार लिखना है। तो अभी यहाँ पे कैंसिल कर लो 0.3, ये 0.1, अब सब मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द आंसर। सो ये 88 हो गया इंटू 0.1 इंटू ये 441, ये 2 डेसिमल आ जाएगा तो 4.41। ये इसको इधर डेसिमल दे दो तो 8.8 इंटू 4.41, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा फॉर वॉल्यूम। सो इट्स 8.8 इंटू 441, सो मल्टीप्लाई, सो इट्स 8 32 32 35, ये वापस से सेम आएगा 35 2 8, so it's 801 883 8808, so it's 38808, 3 डेसिमल्स आएगा तो 38.808 सेंटीमीटर क्यूब है। सो दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द मेटालिक बॉल। अब एक बार ये वॉल्यूम मिलने के बाद हम वॉल्यूम इधर से ट्रांसफर कर सकते हैं, तो 38.808 into 8.9 करेंगे तो we will get the answer. So it's 38.808 into 8.9, 9 8 72, right? अब 9 8 72, 9 8 72, 72 plus 7 79, 9 3 77, 27 plus 7 is 34, ये 0 करो, ये 8 8 64, 8 8 64, 8 8 64, 64 plus 6 70, 24 24 plus 7 31, so ये आ गया आंसर। So ये 2 11 9 3 1 5 4 3 1 2 3 4 decimals, 1 2 3 4 decimals, 345.3912। अब आंसर जो आएगा ना मास का वो ग्राम्स में आएगा, बिकॉज डेंसिटी इज 8.9 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको राउंड ऑफ कर देते हैं 2 डेसिमल्स तक, तो ये अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाएगा 345.39 ग्राम्स। आई होप द सम इज क्लियर। grams. Quickly note it down. So let's read the next question, question number 4. The diameter of the moon is approximately 1/4 the diameter of the earth. What fraction of the volume of the earth is the volume of the moon? Simple question about, ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन हमने सरफेस एरिया में भी किया था फॉर अर्थ एंड मून। तभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि अर्थ हमें स्पेरिकल लेना है, इवन तो इट इज नॉट स्फीयर इन रियल, एग्जैक्ट स्फीयर शेप का नहीं है, बट हमें स्पेरिकल शेप लेना पड़ेगा अर्थ का एंड मून का, दोनों का भी, ठीक है। सो द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे बोला है कि डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ। अप्रोक्सीमेटली लिखा है, अगर अप्रोक्सीमेट लिखा है तो भी हम उसको 1/4 ही लेंगे, ठीक है। नाउ डायमीटर ऑफ द मून, सो डायमीटर ऑफ द मून इज इक्वल टू 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ये रिलेशन दिया है, गिवन, दिस इज गिवन टू अस। हमें पूछा है द व्हाट फ्रैक्शन द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। मतलब अगर डायमीटर ऑफ द मून इज 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ, मतलब अगर हम डायमीटर ऑफ द मून की बात करें तो वो डायमीटर ऑफ अर्थ का कितना फ्रैक्शन है, तो 1/4 फ्रैक्शन है। वैसे ही व्हाट फ्रैक्शन द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ मून, मतलब वॉल्यूम ऑफ अर्थ का कितना फ्रैक्शन होगा, यहाँ पे कितना फ्रैक्शन आएगा। इज दैट क्लियर? तो हमें वॉल्यूम का रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा दोनों का, राइट। सो फॉर दैट, अभी वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन द रेडियस, फॉर दैट इसका रेडियस निकाल लेते हैं, रेडियस का रिलेशन। तो डायमीटर ऑफ द मून मतलब 2 times रेडियस ऑफ मून विल बी इक्वल टू 1/4 इंटू 2 times रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि डायमीटर इज 2 times रेडियस। सो 2 and 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो डायमीटर का जो रिलेशन है सेम रेडियस का रिलेशन होगा। रेडियस ऑफ मून इज 1/4 times रेडियस ऑफ अर्थ। अगर हम ये रिलेशन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो रेडियस ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ इज 1/4 हो जाएगा, राइट। दैट इज आवर रिलेशन। नाउ व्हाट वी विल डू इज, हम ये फाइंड कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 4/3
pi r cube, that is volume of radius of moon, upon 4 upon 3 pi into radius of earth cube. हमें स्पीयर ही कंसिडर करना है, दोनों भी, ठीक है. सो 4 upon 3 pi, 4 upon 3 pi cancel. So it's r upon rm upon re the whole cube. Do we already have rm upon re? Yes, 1 upon 4. So substitute करो तो 1 upon 4 the whole cube. So answer आया 1 upon 64. तो volume of moon upon volume of earth is 1 upon 64. Therefore volume of moon will be 1 upon 64 times. ये ऊपर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा वॉल्यूम ऑफ अर्थ. सो वॉल्यूम ऑफ मून इज 1 upon 64th फ्रैक्शन द वॉल्यूम ऑफ अर्थ. तो आंसर इज 1 upon 64. I hope the sum is clear. Quickly note it down. Let's read the next question. Question number 5. How many liters of milk can a hemispherical bowl of diameter 10.5 centimeter hold? बहुत ही easy question है. एक hemispherical bowl है, स्पीयर नहीं. इसके अंदर हम कितना लीटर्स ऑफ मिल्क स्टोर कर सकते हैं, तो इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो वी विल गेट हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क इट कैन होल्ड, राइट. बट हम वॉल्यूम जो फाइंड करेंगे वो सेंटीमीटर क्यूब में फाइंड करेंगे, बिकॉज डायमीटर इज गिवन इन सेंटीमीटर. सो उसके बाद उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर्स में, बिकॉज हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क बोला है, ठीक है. सो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. तो फॉर हेमिस्फेरिकल बोल, diameter is given as 10.5 centimeter. That's right. So radius will be 10.5 upon 2 कर दो. इसको डेसिमल निकालना है तो निकाल सकते हैं. 2 into 10. It's optional. ऐसे रखा तो भी चलेगा. So ये 5 से 5 2s are 21s are 5 2s are, तो it's 21 upon 4. ठीक है. Meters या centimeters. We need to find how many liters of milk it can hold. मतलब वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं पहले. सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बोल विल बी 2 upon 3 pi r cube, नॉट 4 upon 3, it's 2 upon 3, राइट. पाई का वैल्यू नहीं दिया है तो 22 upon 7 ले लो, इंटू r is 21 upon 4 इंटू 21 upon 4 इंटू 21 upon 4. सो ये 11 होगा. 3 7 7 7 कैंसिल. So it's 21 into 11 upon 4 into 4, 8. So it's 11 into 21 square will be 441 upon 4 into 4 is 16, not 8, 16, sorry. So अब इनको multiply कर दो and divide by 16 करो to get the answer in centimeter cube first of all. So 11 into 4 41. Let's multiply. So 11 ones are 11. फिर 1 कैरी फॉरवर्ड. 11 4 44, 44 145, 4 कैरी फॉरवर्ड, 44 प्लस 4 48, 4851 अपॉन 16. आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा. सो 4851 डिवाइडेड बाय 16, 4851 डिवाइडेड बाय 16, 16 3 48, 50 0 5 5 कैरी फॉरवर्ड हो गया. 0 में जाएगा, ये नहीं जाएगा तो 0 5 1 3 48, right. So 3 आ गया, decimal 30. So 16 1s are 16, 14 140. तो भी 16 in 9s are 144 होता है. 16 8 is आ जाएगा आंसर, right. 16 8s 4 8 128. So it's 128 करो तो 12 आ जाएगा आंसर. फिर वापस 0, फिर 16 128 8 7s are, so 2 6 7s are 42, 4 7 11 112. Okay, so it's 112. It is here 80, 16 5s are 80. So we got the remainder 0. So इसका एग्जैक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब. बट हमें जो आंसर चाहिए वो लीटर्स में चाहिए. वी नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. सो in order to get this into liters हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसको डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, राइट. अगर हम कन्वर्जन फॉलो करें तो डिवाइड बाय 1000, and if you get divide by 1000 तो 3 decimal places shift करो तो 0.303185 liters. अब इसको हम इतने सारे डेसिमल्स में लिखने का ज़रूरत नहीं है. So this will be approximately equal to 0.30 or 0.303 liters. So that is the answer. This is the amount of milk that the hemispherical bowl can
hold. I hope the sum is clear. Quickly note it down. So इस वीडियो में इतना ही. So in the next video we will continue further with this exercise, question number 6 onwards. क्वेश्चन नंबर 10 तक है, तो कंप्लीट करेंगे पूरा का पूरा एक्सरसाइज और वो चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा. आई होप दैट इज क्लियर. सो टिल देन, बाय ऑल ऑफ यू.